Good morning, kids. Welcome to the first lesson of 11th Commerce Economics, which is Basic Concepts in Economics. आइए हम लोग पहला लेसन देखते हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारा कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं. अब हमारा पहला लेसन जो है इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज ब्रांचेस ऑफ economics. Okay, branches of economics are classified into two main or broad categories, which are microeconomics and another one is macroeconomics. Okay, as I told you, economics is a social science which studies human behavior, human aspects, human tendencies, blah 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 blah. Okay, now move on to the next point, which is branches of economics. Branches of economics means what? The branches or roots of economics are classified or divided into two main categories, which are, the first one is microeconomics and another one is macroeconomics. So let's have a look towards both of it one by one. Okay, first we'll discuss about microeconomics. Okay, exactly what is microeconomics? Okay, microeconomics means small things, or we can say individual things. Okay guys, now microeconomics means what? Ki, for example, this is our whole nation or country. We have to divide the whole nation into, we have to divide the whole nation into small parts. And that part is called or known as microeconomics. Next one is, it's also known as the study of individual thing, individual behavior, individual commodity, firm, etc. Okay, so as I told you, microeconomics means to study about individual things or small things. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी देंगे. उसके अंदर हम लोग किसी एक की, जैसे कि हमारी ये पूरी कंट्री है इंडिया, इस पूरी कंट्री को हम क्या करेंगे, कुछ पोर्शंस में डिवाइड अप कर देंगे और फिर हमने सिर्फ किसी एक ही हिस्से की बारे में जानकारी हासिल करना है. दैट इज नोन एज, वी कैन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग prices. Okay, as we are having a detailed study, okay, it's also known as detailed study. Okay, as we have to take the outcomes or results. या हमें सिर्फ क्या चीज तलाशनी होती है, सिर्फ किसी एक चीज का डेटा we have to collect. So it's very easy, very simple, very, we can say, easy step or easy process of calculating or managing, or we can say arranging or collecting individuals data, है ना. ये बहुत ही easy हो जाता है कि किसी एक इंसान का एक चीज का डेटा हमने कलेक्ट करना है. And simultaneously it helps in determining prices as compared to supply and demand of that particular product, है ना. कि हमें हर एक चीज के बारे में, किसी इंडिविजुअल थिंग के बारे में हमें क्या है, वी आर हैविंग द डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट. So easily we can determine or we can understand about the demand and supply of particular product, and easily we can determine the prices of that goods or services. So here microeconomics means to study about individual behavior, individual, we can say, nature, individual firm, individual commodity, individual household, individual organization, XYZ. Okay, so just इतना ही ध्यान में रखिए कि microeconomics means to study about small things and to divide the overall economy into small portions. पूरी इकोनॉमी को हमने क्या करना है बच्चों, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है और बस उसी से रिलेटेड डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हमने इसकी प्राइसेस को डिसाइड करना है. बट द इंफॉर्मेशन शुड बी इन डिटेल. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ जस्ट अपोज टू इट, as I told you, microeconomics means to study about individual behavior. Yeah, it means small things. So here macroeconomics means total, large we can say, or total we can say
large we can say, or we'll say aggregates. Aggregates means again total, we can say total of overall economy. Now moving toward the next point, which is macroeconomics. Macroeconomics means to have a detailed knowledge about total economy, yeah, we can say overall economy. Okay, it's also known as aggregate study. Now here in microeconomics, as I told you, that you have to divide the overall economy, the whole nation, the whole country, into small parts or small divisions. But here what you have to do, guys, here for example, this is your nation, this is your country. So here you have to take the, we can say, total of it. You have to calculate total income of your nation, total expenses of your nation, or total income and expenses of your nation. Now move on to the next point, which is here we are calculating, or we can say doing individual study of individual things, commodities and items. Over here we have to find out, or we have to calculate total income. Total income means national income. Okay, national income, national expense, like that. आइए देखते हैं, जैसे कि हमने माइक्रो में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, पर वो जो जानकारी रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत ही डीप में रहेगी, डेप्थ में रहेगी। और इसके अंदर हम लोग किस किस चीजों की जानकारी हासिल करेंगे, किसी एक इंसान की, किसी एक स्टूडेंट की, किसी एक फर्म की, किसी एक हाउस होल्ड की, सिर्फ किसी एक ही के बारे में हमने डिटेल्ड में नॉलेज हासिल करना है। इसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें किस चीज में मदद करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है कि चीजों की प्राइसेस हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इसी चीजों में हमें मदद करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो चीजों की प्राइसेस हम लोग डिसाइड करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो क्या है हमारा अगला पॉइंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट, जस्ट अपोज टू माइक्रो। माइक्रो के पूरा उलट है वो। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी टोटल या लार्ज स्केल के ऊपर या एग्रीगेट सभी को इकट्ठा करके उसके बारे में जब हम लोग एक वी कैन से फाइंड आउट करते हैं या जानकारी तलाशते हैं, उस चीज को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टोटल इनकम, या वी कैन से नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंस, है ना। पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितना इनवर्ड, कितना आउटवर्ड हो रहा है, कितना वी कैन से टोटल नेशनल इनकम है और टोटल नेशनल एक्सपेंस कितना है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सो दीज आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। Micro means in small quantity and macro means in large quantity. Now move on to the next point, which is characteristics of bonds. Now what do you mean by bonds? Before starting characteristics of bonds, first of all हम देखते हैं कि what do you mean by bonds. So bonds means your wishes, जो भी आप we can say चाहते हो, desire, जो भी आप ख्वाब देखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए and all, और need मतलब आपकी जरूरतें. Now wants means your wishes, your desires and your needs. Now remember one thing guys, always that wants are unlimited, always. Okay, हमारी जो जरूरतें होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है. Okay, always our wants are unlimited. For example, right now I need a car. Okay, once I have car with me na, then I need AC, then I need fridge, then I want microwave and so on. Means what guys, कि my limits, my wants, my needs, my desires and my wishes, these are unlimited. मतलब it will never stoppable, ये कभी भी stop, it will never stop, I'm sorry, it will never stop, है ना. As I told you that wants are unlimited. वो क्या रहेगा, अब हमने एक जरूरत फुलफिल की, उसके बाद में दूसरा. पहले मुझे सिर्फ कार चाहिए, जैसे कार ली, फिर अभी मन कर रहा है एसी चाहिए, फिर मन कर रहा है फ्रिज चाहिए, फिर मन करता है माइक्रोवेव चाहिए. मतलब क्या है कि मेरा मन एक के बाद एक चीजें मांगता ही जा रहा है. That's why wants are unlimited. The next one is recurring in nature. Recurring in nature. Now recurring in nature means what? It changes, है ना. ये क्या होती है, चेंज होती है.
इट चेंज अकॉर्डिंग टू वी कैन से सीजन्स, टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारी जो जरूरतें होती है वो हर वक्त बदलती जाती है। जैसे कि राइट नाउ वी कैन से समर सीजन चल रहा है तो मुझे एसी चाहिए है, फिर जब विंटर सीजन चला रहेगा तो मुझे आइसक्रीम चाहिए। मीन्स व्हाट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, दीज आर वी कैन से ये जो हमारी जरूरत है ये क्या होती है, चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज वांट्स डिफर फ्रॉम एज, वांट्स डिफर एज। हमारी जो जरूरतें होती है वो एज के हिसाब से बदल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अ किड ऑफ एज 6 ही नीड्स चॉकलेट्स। एक 6 साल का बच्चा जो है ना, द किड हु इज 6 years old, he needs or he wants chocolates। एक लड़का जो है वो 20 years old है, एक लड़का या एक बंदा जो 20 years old है, he needs soft drinks for example, okay, he needs soft drinks such as Coca-Cola, Limca, Fanta and so on। A person who is of 40 years, he needs good meal है ना, या good food। And a person above 60 years, he needs we can say tablets of BP, sugar and XYZ। ओके, अब वांट्स क्या होती है बच्चों, एज के हिसाब से डिफर करती है या चेंज होती है। जैसे कि एक 6 साल का बच्चा है वो चॉकलेट मांगेगा या चिप्स मांग लेगा, एक 20 साल का बच्चा है वो मांगेगा सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक 40 इयर्स का जो इंसान है वो क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा फूड चाहिए, मेरे को बिरयानी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे रायता चाहिए एंड सो ऑन। और एक जो बूढ़ा इंसान रहेगा वो हमेशा क्या मांगेगा, भाई मुझे बीपी है, मुझे बीपी की टैबलेट दो, मुझे शुगर है, मुझे शुगर की टैबलेट दो। दैट्स व्हाई वांट्स आर डिफर फ्रॉम एज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वांट्स डिफर विथ जेंडर है ना, वांट्स डिफर विथ जेंडर। फॉर एग्जाम्पल एक 20 years ओल्ड लड़का है और एक 20 years ओल्ड है ना, एक बॉय है और एक गर्ल है। गर्ल वांट्स मेकअप and a boy wants fancy dresses या new dresses। means what, the wants are differing according to their gender। उनकी जरूरतें कैसे बदल रही है बच्चों, उनके जेंडर के हिसाब से। move on to the next one, that is okay, wants differ as per preferences, habits and their taste। Okay, now the next one is wants are differing with preferences, habits and taste। अब किसी एक की क्या होती है कि आदत होती है, भाई मुझे पिज्जा बहुत पसंद है तो मैं क्या करूंगी, एज मेरी हैबिट है तो मैं पिज्जा ही खाऊंगी। और एक बंदे को पिज्जा पसंद ही नहीं है तो वो पिज्जा को खाएगा ही नहीं। और प्रेफरेंस, एक गरीब इंसान है उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो इंस्टीड ऑफ प्रेफरिंग, उसे पिज्जा ठीक है पसंद है, बट इंस्टीड ऑफ वी कैन से प्रेफरिंग पिज्जा, वो बंदा प्रेफर करेगा वहां पे राइस या व्हीट। ये क्या हो गया हमारा कि हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या होती है बच्चों, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी आदतें और हमारे टेस्ट के हिसाब से बदलती रहती है। नेक्स्ट वन इज वांट्स डिफर विथ सीजन। वांट्स अब क्या होती है बच्चों, हमारी सीजन के हिसाब से बदल रही होती है। जैसे कि समर सीजन है, गर्मियां पड़ रही है तो मुझे क्या चाहिए, आई नीड आइसक्रीम एंड एसी। विंटर सीजन चल रहा है तो आई नीड वार्म क्लॉथ। आगे समझ में कि क्या है, सीजन के हिसाब से भी जरूरतें चेंज होती रहती है। कि अगर सर्दियां चल रही है तो मुझे क्या चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए या कुछ तो भी गर्म गर्म चीजें चाहिए खाने पीने के लिए एंड ऑल। और जब समर सीजन चल रहा है, गर्मियां चल रही है तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, एसी चाहिए, ये सारी चीजें। And the last point of today's session is wants differ with culture। Now culture के हिसाब से हमारी wants कैसे बदलती है, जैसे कि हमारा फूड अलग होगा, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा और हमारा बिहेव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाउ कल्चर के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल कि कल्चर के हिसाब से कोई लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं, कोई ड्रेस पहनेगा, कोई साड़ी पहनेगा, डिपेंड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉन्ट। थैंक यू सो मच।